Assalamu alaikum everyone. Let's move to the next part of electrochemistry where we will discuss relationship between conductivity and molar conductivity of electrolytes. Now in previous session we have gone through the conductivity of metals as well as the electrolytic solutions, and we have discussed the different factors that affect electrolytic conductivity. जो जो भी फैक्टर्स है जिससे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी इफेक्ट होता है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। और कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी मेजर करते वक्त, जैसे कि डीसी सोर्स अप्लाई नहीं होगा, एसी सोर्स हम यूज़ करते हैं, और लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स मोल्टन या एक्वियस फॉर्म में होते हैं। उस वजह से हम स्पेशली डिजाइंड कंडक्टिविटी सेल्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर भी एक्यूरेसी के लिए हम स्टैंडर्ड पोटेशियम क्लोराइड सोल्यूशन लेके रेजिस्टेंस पता करके बाद में कंडक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं या फिर सेल कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं, राइट? So, after all this discussion, will finally for electrolytic solutions we define the specific conductance, means conductivity, and we'll go with some new terms which are more convenient for electrolytic solutions, that is molar conductivity, and one more is equivalent conductance. Right, let's discuss one by one what are these. First we'll go with their definitions and we'll go with the next part in next relationship. Now, first, specific conductance denoted by K. We define it as the conductance of the solution of an electrolyte enclosed in a cell with two electrodes of unit area of cross section separated by 1 centimeter distance. Right? What is specific conductance? It is also called as conductivity. Simply we can use the word conductivity. It is the conductance of the solution of an electrolyte enclosed in a cell with two electrodes of unit area of cross section separated by 1 centimeter distance. Okay, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये अपना कंडक्टिविटी सेल है, स्पेशली डिजाइन कंडक्टिविटी सेल होते हैं, अलग अलग फॉर्म में होते हैं, ये इलेक्ट्रोड्स है, इसको आप कोई सोल्यूशन में जब आप डिप करते हैं तो इस सोल्यूशन से जो कंडक्टेंस होगा उसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलेंगे। इसमें कंडीशन क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स रहेंगे उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना रहेगा? यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स 1 मीटर स्क्वायर और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लाइक दैट यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी देयर। और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा? 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर, राइट? सो दैट विल बी कॉल्ड एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। Okay, or we can also define this specific conductance as it is the conductance produced by all the ions present in unit volume of electrolytic solution. Okay, simple definition, it is the conductance produced by all the ions present in unit volume of solution. राइट? अब यहाँ पे आपको एरिया मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस 1 मीटर है तो मीटर क्यूब हो जाएगा। ओके, एरिया इज नथिंग बट लेंथ इनटू ब्रेथ, वन मोर डायमेंशन यू आर मल्टीप्लाइंग मींस इट विल बिकम वॉल्यूम। एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर मींस इट विल बिकम 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे वही है, instead of giving you area and distance they have directly given you the volume part, right? मतलब होता है इसका, suppose you take a container, you will insert the electrodes and you have taken some electrolytic solutions which contains cations and anions. इसमें कोई electrolytic solution है, right? अभी इस electrolytic solution का मैं volume लेता हूँ 1 liter, right? 1 liter I'll take it as, okay, it will be nothing but 1000 cm cube, या फिर आप
1 मीटर क्यूब ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब ले सकते हैं. दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 1 dm क्यूब. ओके, 1 liter is equal to 1000 cm cube or equal to 1 dm cube, or 1 meter cube you can take, or 1 cm cube you can take, means one value, unit volume should be there, right? So इतने वॉल्यूम में जितने भी आयोन्स आएंगे, इलेक्ट्रोलाइट आप जितना भी डिसॉल्व करते हैं, सपोज आप 1 मोल या 2 मोल 3 मोल जितने भी डिसॉल्व करेंगे, से फॉर एग्जांपल जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व करें उससे टोटल आयोन्स मिले 100, यू गॉट 100 आयोन्स. तो इन 100 आयोन्स के वजह से जो भी कंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा, राइट, इन 100 आयोन्स की वजह से जो भी कंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, राइट. स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये पूरे 100 आयोन्स जितने भी है, 100 या 200 300, कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है? यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, राइट. तो जब भी आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस का डिस्कस करते हैं, वॉल्यूम इज इंपॉर्टेंट. whatever may be the quantity of electrolyte, but volume should be taken as unit volume, means 1 meter cube or 1 dm cube or 1 cm cube, right? So that is called as what? Specific conductance or conductivity, denoted by the symbol K. That is nothing but we call it as kappa. Okay, let's see how, what is its unit. Unit of specific conductance, we write it as per ohm per centimeter, like this also we can write, or SI unit we write it as Simon per meter. Okay, the SI unit of specific conductance is Simon per meter, or we also use the unit, commonly used unit is Simon per centimeter. SI unit Simon per meter है और commonly used unit कौन सा होता है? Simon per centimeter. इसके अलावा आप per ohm per centimeter भी यूज कर सकते हैं या फिर सिंबॉलिक यूनिट भी यूज कर सकते हैं. ओके, next, molar conductance. Now this molar conductance, it is based on the concentration of electrolyte. It more focuses on the concentration of electrolyte and it will not focus on volume part. Whatever may be the volume, we have to focus only on the concentration of that particular electrolyte. Let's see its definition. It is the conductance due to all the ions produced by 1 gram mole of an electrolytic solution. What is molar conductance? It is the conductance due to all the ions produced by 1 gram mole of an electrolytic solution. So here, nowhere it has been mentioned as volume part. Volume part नहीं आया. यहाँ पे जितने भी ions produce होते हैं कितने electrolyte से? 1 gram mole of an electrolyte, right? Means suppose this is some container containing 2 electrodes, and here we have the electrolytic solution. या वॉल्यूम जितना भी ले लो, लेकिन यहाँ पे हम क्वांटिटी मेंशन कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट की, कितना है? 1 ग्राम मोल और 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. सो फॉर एग्जांपल यू हैव टेकन NaCl. NaCl 58.5 ग्राम, आप 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व करो, उसका मोलारिटी बन जाता है 1 मोलार, राइट. मीन्स यू हैव एडेड 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड इन given amount of solvent, right? So this quantity we call it as 1 gram mole of NaCl, or in general for different electrolytes we use 1 gram mole of an electrolytic solution. अब इतने सोडियम क्लोराइड से जो भी आयोन्स प्रोड्यूस होंगे उनसे जो कंडक्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं मोलार कंडक्टेंस, राइट. So it is a conductance due to all the ions produced by 1 gram mole of an electrolytic solution. Okay, whatever may be the volume, we'll focus only on the quantity here, right? Unit of molar conductance, we take it as Simon meter square per mole, or commonly we use Simon centimeter square per mole. Okay. इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सेम मोलार कंडक्टेंस ही है. मोलार कंडक्टेंस में हम मोलारिटी कंसिडर करते हैं,
कॉन्सेंट्रेशन जो सोल्यूशन का एक्सप्रेस करेंगे आप मोलारिटी फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हम जब लेते हैं तो यहाँ पे हम जो कॉन्सेंट्रेशन लेंगे सोल्यूशन का वो नॉर्मेलिटी यूनिट्स में एक्सप्रेस करेंगे. That is the difference. Molar conductance, solution concentration will be expressed in molarity form, whereas in equivalent conductance, solution concentration will be expressed in terms of normality form, right? So it is defined as the conductance due to all the ions produced by 1 gram equivalent of an electrolytic solution. It is produced by 1 gram, produced due to all the ions produced by 1 gram equivalent of an electrolytic solution. 1 gram equivalent of an electrolytic solution से जितने भी ions produce होंगे उससे जो conductance होगा उसको हम बोलते हैं equivalent conductance. This symbol we call it as lambda, right? Okay, we have studied this one. Okay, ये भी lambda ही है, ये भी लैम्डा ही है. इसको आप स्मॉल लेटर्स में या अलग स्पेशल नोटेशन है, ये भी एक स्पेशल नोटेशन है, राइट? इट कैन बी कॉल्ड एज कैपिटल लैम्डा और स्मॉल लैम्डा you can call, right? So here lambda m for molar conductance and lambda eq for equivalent conductance. यूनिट भी सिर्फ चेंजेस क्या आते हैं, साइमन मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट आएगा और यहाँ पर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, राइट? Let's see the relationship between specific conductance, molar conductance and concentration of electrolytic solution. See how the specific conductance, concentration and molar conductance are related. अगर मैं ये concentration term इधर ला लूंगा, right, on the left hand side, what happens is specific conductance is directly proportional to concentration. K is directly proportional to concentration. Whereas यहाँ पे ये देखो आप, lambda m is inversely proportional to concentration. Lambda m is inversely proportional to concentration. मतलब ये है कि concentration of solution का जितना भी बढ़ाएंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बढ़ते जाएगा. जितना आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस बढ़ते जाता है. जैसे कि एग्जांपल 0.1 मोलार KCl सॉल्यूशन, राइट? इसका अगर K वैल्यू, स्पेसिफिक कंडक्टेंस वैल्यू K1 लेता हूं मैं, 1 मोलार KCl सॉल्यूशन, इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस वैल्यू अगर मैं ट्रीट करता हूं K2, so as per this relationship what happens, K2 value will be greater than K1. K2 value will be greater than K1, right? Now when you talk about molar conductivity, 0.1 molar KCl and 1 molar KCl, इसके लिए लैम्डा m1 लेता हूं और इसके लिए लैम्डा m2 लेता हूं, राइट? यहाँ पे क्या होता है, उल्टा हो जाएगा. 1 मोलार से 0.1 मोलार अगर आप कर रहे हैं, कैसे करेंगे, पहले 1 मोलार लेंगे, इसमें वाटर ऐड करके इसको डाइल्यूट करके इसका कॉन्सेंट्रेशन आप कम कर लेंगे. तब क्या होता है, डाइल्यूशन करने के बाद मोलार कंडक्टिविटी बढ़ते जाता है, मीन्स लैम्डा m2 विल बी लेस देन लैम्डा m1. So lambda m2, K2 was greater than K1, whereas lambda m2 will be less than lambda m1 because the concentration is inversely proportional, right? क्यों ऐसा होता है? Say for example, ये 1 लीटर सोल्यूशन, ये और एक इलेक्ट्रोलाइट, सेम इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, ये भी मैं लेता हूं 1 लीटर. अब यहाँ पे सपोज आप 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे भी ऐड करें, यहाँ पे भी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करें. यहाँ पे
से फॉर एग्जांपल यू गॉट 10 आयोन्स, यहाँ पे भी 10 आयोन्स मिल गए। मतलब 1 मोल में से जितना भी आयोनाइजेशन हुआ है, अभी थोड़ा आयोनाइजेशन बाकी है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में भी कुछ इलेक्ट्रोलाइट रह जाता है, यहाँ पे भी वैसा ही रहेगा। तो दोनों में कितने आयोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं? 10 10, राइट। तो इन 10 आयोन्स की वजह से जो भी कंडक्टेंस होगा उसको आप बोलेंगे के, और इन 10 आयोन्स की वजह से जितना भी कंडक्टेंस होगा उसको आप बोलेंगे लैम्डा एम मोलार कंडक्टेंस, राइट। अब क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों में वाटर ऐड करते हैं, will dilute both the solutions. Say for example, I'll add up here 1 liter extra, here also I'll add up 1 liter extra. तो दोनों तरफ 2 liters हो गया, right? 2 liters, right? यहाँ पे जब आप ऐड करेंगे तो ये आयोन्स जो 10 आयोन्स इतने वॉल्यूम में थे, ओके, और थोड़े बहुत न्यू आयोन्स भी प्रोड्यूस होंगे। से फॉर एग्जांपल 5 आयोन्स एक्स्ट्रा बढ़ गए 1 लीटर ऐड करने के बाद, यहाँ पे भी 5 आयोन्स बढ़ गए एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऐड करने के बाद, या फिर दोनों 10 10 ले लेंगे, यहाँ पे भी 10 बढ़ गए, यहाँ पे भी 10 बढ़ गए, टोटली 20 आयोन्स यहाँ पे भी है, 20 आयोन्स यहाँ पे भी है, राइट। तो ये 20 आयोन्स क्या होते हैं, अब ये 2 लीटर सोल्यूशन में पूरा स्प्रेड हो जाते हैं। से फॉर एग्जांपल 10 आयोन्स यहाँ पे और 10 आयोन्स ये न्यू वॉल्यूम में आ गए, राइट, बिकॉज दे विल स्प्रेड आउट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द सोल्यूशन। लेकिन के कैलकुलेट करते वक्त आपको सिर्फ यूनिट वॉल्यूम ही लेना है। के कैलकुलेट करते वक्त क्या करना है, आपको यूनिट वॉल्यूम ही लेना है, 2 लीटर कंसिडर नहीं करना है, ओनली यू हैव टू कंसिडर 1 लीटर ओनली, एंड 1 लीटर कंटेन्स हाउ मेनी आयोन्स? स्टिल 10 आयोन्स ओनली, राइट, 10 आयोन्स ओनली, या फिर इससे कम भी हो सकते हैं क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इससे कम भी हो सकते हैं, राइट। सो व्हाट वी से इज व्हेन यू ऐड अप or when you dilute the electrolytic solution, concentration decreases, and due to decrease in concentration, k value also decreases, right? So upon dilution what happens? K value decreases. यहाँ पे क्या होगा, 1 + 1 2 लीटर हो गया, 2 लीटर होने के बाद आयोन्स भी 20 हो गए। अब यहाँ पे क्वांटिटी 1 मोल ही है, यहाँ पे भी 1 मोल थी, यहाँ पे भी 1 मोल है, सिर्फ आप वाटर ऐड करने के बाद आयोनाइजेशन ज्यादा हो गया। अगेन यू कैन से यहाँ पे आप वॉल्यूम देखना नहीं है, यहाँ पे आप कितने आयोन्स प्रोड्यूस हो रहे वो देखना है। इट इज अ कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयोन्स प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। पहले भी 1 मोल ही था, अभी भी 1 मोल ही है, सिर्फ डाइल्यूशन के बाद आयोन्स बढ़ गए। आयोन्स बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, 10 + 10 आप अलग अलग नहीं लेंगे, यहाँ पे पूरे 20 आयोन्स को ही काउंट करेंगे, right? Because this molar conductance does not discuss about the volume part, it discusses only about the ions produced by the amount of electrolyte. So total ions कितने हो गए यहाँ पे 20, definitely lambda m increase होगा, right? Means molar conductivity increases upon dilution, molar conductivity increases upon dilution, right? तो 1 मार्क क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये रिलेशनशिप याद रखो, lambda m is inversely proportional to concentration, whereas specific conductance, that is K, it is directly proportional to concentration. Lambda m is directly proportional to specific conductivity, whereas it is inversely proportional to concentration. Okay, concentration based equations आते हैं, तो ये K is directly proportional to C याद रखो, और lambda m is inversely proportional to C, right? Next, when you are going to use this relationship, okay, साइमन पर मीटर इसका यूनिट होगा, और कॉन्सेंट्रेशन यूजुअली हम मोलार कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, लेकिन इस रिलेशनशिप में जब मोलारिटी आप लेंगे इट शुड बी मेंशन्ड एज मोल पर मीटर क्यूब, it should be taken as mole per meter cube. When you are given specific conductance in Simon per meter and concentration is given as mole per meter cube, then you have to use this relationship lambda m is equal to K by C, right? क्योंकि Simon per meter into ये रेसिप्रोकल हो जाएगा,
meter cube divided by mole. This and this will cancel. What you will be getting is Simon meter square per mole, right? This will be the unit of molar conductance, Simon meter square per mole. Okay, या फिर you can go with this relationship also. The common used relationship is lambda m is equal to k into 1000 divided by c. यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो दिया जाता है, ये जब आप रिलेशनशिप यूज करेंगे, क्या लेना है आपको? अगर स्पेसिफिक कंडक्टेंस साइमन पर सेंटीमीटर फॉर्म में दे रहे हैं तो आप ये रिलेशनशिप यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, राइट? ये 1000 कैसे आ रहा है देखते हैं. के वैल्यू साइमन पर सेंटीमीटर फॉर्म में दिए हैं, कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी होता है मोल पर डीएम क्यूब होता है, मोल पर डीएम क्यूब, राइट? अब डीएम क्यूब को आप सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर लो. आई विल राइट साइमन पर सेंटीमीटर इनटू, यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 डीएम क्यूब इज इक्वल टू 1000 सीएम क्यूब डिवाइडेड बाय मोल नीचे आ जाएगा. अगेन सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो क्या कॉन्सेंट्रेट ऊपर न्यूमरेटर में क्या आ रहा है अभी? 1000 आ रहा है, राइट? सो वी कैन राइट के into 1000 divided by concentration, right? Next, K divided by C into 1000. ये कब आता है रिलेशनशिप? जब ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस मेंशन रहता है साइमन पर मीटर फॉर्म में और कॉन्सेंट्रेशन रहेगा मोल पर डीएम क्यूब फॉर्म में, राइट? दोनों अगर मोल पर मीटर क्यूब और साइमन पर मीटर में है तो ये रिलेशनशिप. अगर के वैल्यू साइमन पर सेंटीमीटर, सिर्फ के वैल्यू साइमन पर सेंटीमीटर में दे रहे हैं तो इसको भी आप चेंज करके डीएम क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर लेंगे. अभी साइमन पर मीटर दिए हैं, अब जो डीएम क्यूब पार्ट रहता है उसको आपको मीटर क्यूब में चेंज करना रहता है. तो क्या करना पड़ेगा? साइमन पर मीटर डिवाइडेड बाय मोल पर डीएम क्यूब है, साइमन पर मीटर इनटू रेसिप्रोकल हो जाएगा. नाउ 1 डीएम क्यूब when you write, remember this relationship, it is equal to 1000 cm cube and 1 dm cube is nothing but 10 raised to minus 3 meter cube, right? So I have to write over here is 10 raised to minus 3 meter cube divided by mole, right? So Simon per meter into meter cube divided by 10 raised to minus 3 को नीचे लेता हूँ, 10 raised to 3 होगा, 10 raised to 3 is nothing but 1000 मोल. अगेन कैंसिल कैंसिल, तो आपको क्या आएगा रिलेशनशिप? के डिवाइडेड बाय सी इंटू 1000, राइट? सो इस तरह जो है हम ये तीन रिलेशनशिप फाइनली यूज करते हैं. लैम्डा एम इज इक्वल टू के बाय सी, लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 डिवाइडेड बाय सी एंड लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू k divided by c into 1000, right? In many of the numericals you will be using this relationship. Okay, so this is the way how we relate specific conductance, molar conductance and concentration of electrolytic solution. On this numericals will be there and we'll continue some laws based on this molar conductance of electrolytes in next session. Okay.